Good evening, one and all. And as we all understand, as a professional and any responsible citizen, that how important it is to pay the tax. But at the same time, if one can legitimately save the taxes, there couldn't be a better way. And they say that anybody who's a professional, knows the nuances how one can do the best in that particular field. And if you have a professional like a chartered accountant, Mr. Rajiv Arora, who also, when he feels that I was talking to him, that as a chartered accountant, what he feels, he says that professionally one can all grow. But the best way is that if you keep on sharing your knowledge and disseminating, and that too free of cost, to understand and empowering not only professionally and otherwise on various aspects, he started a YouTube channel by the name of CA Plus, wherein he takes short snippets as well as the bird eye view to understand for a common man in a simplest manner as how can things be carried forward in the financial aspects. Those who want, they can connect with that channel. They can also like and subscribe. But as far as our journey of Beyond Law is concerned, we have been empowering everyone so that they can, as the name suggests, that beyond law also we take sessions. And top income tax saving tips, if one could understand, it's good for any professional to understand. For any citizen, it is important to understand. One should save tax which can be legitimately be done, and why not it should be done. And that's why they say that a slight advice from any professional would always carry forward. So to understand the what could be the top secrets, top ideas with which one can save income tax, and since everybody wants to pay back to the nation also, it contributes for the healthy growth of a nation. As a responsible citizen, we should also pay income tax, but in a legitimate manner, rightful manner. So it is good for the citizen as well as for the country. Without taking much time, I will request Mr. Rajiv Arora, who fortuitously is also from Chandigarh and he's been my class fellow in a law. That makes us to probably think that we are on a common page to take ideas forward. Over to you, Mr. Rajiv. Thank you, Vikas. Thanks for the introduction. And now, straight away, good evening, friends. And straight away, I am coming to the topic itself. The topic which has been given to me today is how to save taxes, income taxes. All of us are earning incomes, and there are a lot of taxes which are there itself. So we want to pay minimum of taxes. And today, now it's the fag end of the year. 31st March is approaching. और हम सब ने अपनी अपनी सेविंग्स जो है एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर वी हैव कमिटेड टू आवर एम्प्लॉयर्स और whatever we have earned in the financial year we only can save during that particular financial year जो भी हमने उस particular financial year में सेविंग किया है उसी पे हम बेनिफिट टैक्सेशन का ले सकते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद द हाउ टू सेव टैक्स पे मैं लेटर ऑन आता हूं बट फर्स्टली income tax there was an old regime of the taxation and now there is a new regime of taxation old regime में क्या था कि earlier the slab rate for individuals below 60 years was 2.5 lakh of rupees and for senior citizen it was 3 lakh and for super senior citizen who was above 80 years it was 5 lakh of rupees and from 2 lakh 2.5 lakh to 5 lakh there was a taxation of 5% and above 5 lakh it was 10%, 20%, and subsequently it was 30%. Recently, 2 years back, income tax introduced a new regime of taxation, where earlier in the earlier regime there was around 120 type of deductions or exemptions which were available. So now income tax reduced it to around 50, and they have done away with some 50 exemptions or deductions in the new regime. So in the new regime, parallelly they have kept a new regime open, and in the new regime the taxation is up to 2.5 lakh, it is 5%, then subsequently 2.5 to 5 lakh it was it's 2.5, 5, 7.5, then 10, then subsequently it's 12.5 and 15, and it goes on. So now the first question, and for salaried earner and individuals who are individuals not having business income, they have an option at the when they are filing their ITRs, they have an option either to select the taxation that they want to select the old regime or the new regime of the taxation.
सो अगर वो ओल्ड regime में जाते हैं तो दे कैन टेक द बेनिफिट्स, ऑल द बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन अंडर शेड्यूल 6 से, जैसे 80C के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं, एचआरए का बेनिफिट ले सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, होम लोन का जो इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट ले सकते हैं. सो दे कैन टेक ऑल द बेनिफिट्स व्हिच वर अवेलेबल इन द अर्लियर regime. बट इन केस दे सिलेक्ट द ऑप्शन अंडर द न्यू regime, तो उसमें क्या है कि वो कोई भी most of the deductions, standard deductions, HRA, LTA have been done away with. That means उनका टैक्सेशन वहां पे लोअर है, लेकिन वो किसी भी टाइप की डिडक्शंस को क्लेम नहीं कर सकते हैं. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं ओल्ड regime में जाऊं कि न्यू regime में जाऊं. ये आप इनकम टैक्स ने आपको अलाउ किया है. It started from year 2021 and now 2 years have passed. Now this is the third year which will be closing it up. So you can, for salaried person or any person, pensioners, they have an option to select every year. They can change, either they can opt for an old regime or they can come into a new regime. But for business people, it has been allowed once in their lifetime. For example, if a businessman has opted from an old regime to a new regime, then subsequently he wants that I should come back to the old regime. So once in a lifetime only he can come select the option of changing the old regime or a new regime, but he cannot select it every year. So the first and the foremost thing which everybody has to look into कि whether मैं अपनी taxation को either I can do it myself or I can take the help of some taxation experts. सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि मेरे को टैक्सेशन जब मेरा साल का एंड होता है तो मेरे को बेनिफिट ओल्ड regime में है या न्यू regime में है. इफ यू पर्सनली आस्क मी कि अगर आप हर तरह का 80C का आपने डिडक्शंस के आपके पास प्रूफ्स हैं और आप एचआरए का भी बेनिफिट, आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, या आपने एलटीए का बेनिफिट है, या आपने होम लोन ले रखा है, तो ओल्ड regime इज बेटर फॉर यू. तो सबसे पहला तो फोरमोस्ट पॉइंट इज आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ओल्ड regime में जाना है कि न्यू regime में जाना है. नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जितने भी लोग हैं, अगर दे हैव अ फैमिली मेंबर, जैसे मोस्ट केसेस में देखा गया है कि हस्बैंड क्या होता है, इफ ही इज अर्निंग, तो वो वाइफ को पैसे को ट्रांसफर कर देता है थिंकिंग कि मैंने 10 या 15 लाख रुपए वाइफ को ट्रांसफर कर दिए और या चिल्ड्रन के नाम पे ट्रांसफर कर दिए और मेरी लायबिलिटी कम हो गई. इट्स रॉन्ग. इसमें क्या होता है कि अंडर सेक्शन 64 देयर इज अ क्लबिंग प्रोविजन व्हिच इज एप्लीकेबल. ऑल्दो जो आप वाइफ को या अपने चिल्ड्रन को पैसा ट्रांसफर करते हैं, गिफ्ट देते हैं, व्हिच इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, लेकिन उस केस में क्योंकि आपने जो वाइफ को पैसा ट्रांसफर किया है उस केस में वो क्लबिंग प्रोविजन लगने की वजह से, अगर आपने वाइफ को 10 लाख रुपए दिए है और उस पे मान लीजिए आपका 80,000 रुपया इंटरेस्ट आता है एफडी का, तो उस केस में वो 80,000 वाइफ की इनकम नहीं माना जाएगा, वो 80,000 आपकी इनकम माना जाएगा. और जो बच्चों को भी इवन ऐसे ही पैसा आपने ट्रांसफर किया है, उनको जो इंटरेस्ट या इनकम आनी होगी वो आपकी इनकम मानी जाएगी, ना कि उनकी इनकम मानी जाएगी. तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि जब आप पैसे को अपनी वाइफ या अपने चिल्ड्रन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको क्लबिंग प्रोविजन का ध्यान रखना है. तो हियर आई विल सुजेस्ट ए बेटर रेमेडी इज कि अगर आप वाइफ को या बच्चों को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में उनकी इन्वेस्टमेंट कराइए जो टैक्स फ्री हैं. फॉर एग्जांपल पीपीएफ है, पीपीएफ में इंटरेस्ट इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. अब आप वाइफ को 10 लाख रुपए ट्रांसफर करते हैं और वाइफ उससे पीपीएफ अकाउंट खोल के उसमें ट्रांसफर कर देती है और पीपीएफ पे जो इंटरेस्ट आ रहा है इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. सिमिलरली कोई टैक्स फ्री बॉन्ड्स है गवर्नमेंट के व्हिच दे कम आउट, तो उसमें अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उसपे जो इनकम है उस पे कोई टैक्स नहीं है. दैट्स व्हाई आप अपनी लायबिलिटी को उन पे शिफ्ट कर सकते हैं. या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके चिल्ड्रन माइनर है उनके नाम पे कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसकी जब वो मेजर होंगे तो वो सारा का सारा, जैसे कोई पॉलिसी कर दी आपने या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डाल दिया कि जब वो मेजर होंगे तभी उस अमाउंट पे टैक्सेशन होगा. तो उस केस में क्या होगा कि जब वो मेजर होंगे तो वो टैक्सेशन उनके हैंड्स में होगा, ना कि आपके हैंड्स में होगा. तो दिस इज वन ऑफ द लेजिटिमेट वे ऑफ सेविंग द टैक्स. अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनके घर में. तो उस केस में क्या होता है कि दे आर सैलरीड अर्नर पर्सन्स, बट दे आर नॉट एबल टू पे द टैक्स. तो उस केस में क्या होगा कि जब वो मेजर होंगे तो वो सारा का सारा, जैसे कोई पॉलिसी कर दी आपने या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट में डाल दिया कि जब वो मेजर होंगे तभी उस अमाउंट पे टैक्सेशन होगा. तो दिस इज वन ऑफ द लेजिटिमेट वे ऑफ सेविंग द टैक्स. अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनके घर में. तो उस केस में क्या होता है कि
but they stay with their parents because of the joint family culture, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। अब उस केस में क्या होता है, द हाउस इज ओन्ड बाय देयर पेरेंट्स। लेकिन उस केस में अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ एक रेंट एग्रीमेंट करके, अगर आपके फादर के नाम पे घर है और आप उस घर का रेंट एग्रीमेंट करके फादर को आप अकाउंट पे चेक से पेमेंट करते हैं, तो उस केस में आप एचआरए का बेनिफिट ले सकते हैं अपने, बिकॉज यू बीइंग अ सैलरीड अर्नर आपको रेंट मिलता है, एचआरए मिलता है, तो आप एचआरए का बेनिफिट ले सकते हैं। बट इसमें एक खास ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपको हर महीने रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से अपने फादर या मदर को अपना रेंट ट्रांसफर करना है। और दूसरी चीज आपको ये इंश्योर करना है कि साल के एंड में जो भी आपके फादर या मदर ने की इनकम बनी है, उसमें मान लीजिए आपने अपने फादर मदर को 5 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर रेंट ट्रांसफर किया। अब उसमें 5 लाख जो हो गया वो आपके फादर और मदर की इनकम नहीं मानी जाएगी, उसमें उनको 30% का बेनिफिट मिलेगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। तो दैट मींस 5 लाख में से 30% उनका लेस हो गया, तो उनकी जो इनकम है वो 3.5 लाख के करीब रह जाएगी। तो उनको 3.5 लाख पे टैक्स देना है। तो अगर दे आर सीनियर सिटीजन तो 3 लाख तक तो वैसी एग्जेम्पशन है एंड दे कैन टेक द बेनिफिट, और उन पे मिनिमम टैक्स बनेगा, या उसमें एटीसी की सेविंग कर लेते हैं तो उन पे टैक्स बनेगा ही नहीं। तो दिस वे आप एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं और आपके पेरेंट्स जो है वो उसमें टैक्सेशन में एचआरए के बेनिफिट रेंट अपनी इनकम दिखा के उस पे बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा जो फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो कर सकते हैं, आप डिडक्शंस अंडर 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। अब शेड्यूल 6A में देयर आर लॉट ऑफ डिडक्शंस विच आर अवेलेबल, और मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे लोग उनका बेनिफिट ही नहीं लेते हैं। और एक इससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिफोर स्टार्टिंग द डिडक्शंस एक पॉइंट मेरे थॉट माइंड में आया कि बहुत सारे लोग तो ये करते हैं, मान लो हस्बैंड इज अर्निंग एंड वाइफ इज नॉट अर्निंग, दे डू नॉट फाइल इवन द रिटर्न्स। या वाइफ छोटा मोटा काम करती है, मान लो ब्यूटी पार्लर का काम है, या छोटा मोटा घर पे कुछ काम करती है, या घर पे होम कोचिंग करते हैं, दे थिंक कि वाइफ की इनकम 2.5 लाख से कम है या 3 लाख है, तो व्हाई शुड आई पे टैक्सेस ऑन दैट। इट इज रॉन्ग। अगर हस्बैंड अपनी आईटीआर पे टैक्सेस पे करता है, सिमिलरली आई विल आल्सो सजेस्ट कि आप की वाइफ इवन इफ शी इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ घर पे कुछ काम करती हैं, तो यू शुड फाइल हर रिटर्न। उसका बेनिफिट क्या होगा आपको कि जब आपने कभी होम लोन लेना है या आपको कभी फॉरेन जाना है, तो नॉर्मली आपसे आईटीआर हस्बैंड और वाइफ की मांगी जाती है। तो उस केस में आप दोनों अगर इनकम टैक्स पेइंग है तो आपको वीजा लगने में आसानी हो जाती है। और अगर आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी 40 लाख रुपया बन रही है, तो इसकी वजह से यू कैन मेक इट, आपकी एलिजिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बन सकती है, 60 लाख या 65 लाख रुपया बन सकती है। तो दिस इज आल्सो आई ऑलवेज सजेस्ट टू माय क्लाइंट्स कि अगर आप वाइफ की रिटर्न नहीं भरते हैं या आपके मेजर चिल्ड्रन है और वो अभी कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं कर रहे हैं, बट फाइल देयर रिटर्न। तो नाउ आई एम कमिंग बैक टू द शेड्यूल 6A डिडक्शंस। अब 80C, ऑल ऑफ अस आर अवेयर कि 80C के अंदर मेरे को 1.5 लाख की एग्जेम्पशन मिलती है। अब 80C के अंदर कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसके अंदर मैं 80C का बेनिफिट ले सकता हूं? सबसे इंपॉर्टेंट है पीपीएफ, जिसपे आज की डेट में 8.1% के करीब रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड इट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री। सिमिलरली आप पीएफ तो आपका एम्प्लॉयर काटता है, 12% वो आपके सैलरी में से काटता है और 12% वो कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन आपको इसके अलावा भी लगता है कि आप उस पीएफ के अलावा भी बाहर पैरेलली अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आप पीपीएफ अकाउंट सेपरेटली विद द पोस्ट ऑफिस और एनी बैंक खोल सकते हैं और उसमें आपको 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा आपका नेशनल पेंशन स्कीम है which recently government few years back government introduced, तो उसमें भी अगर आप पे करते हैं तो उसको भी आप 80C में कवर कर सकते हैं। सिमिलरली किसान विकास पत्र एंड दिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इसमें भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आप 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। सिमिलरली इक्विटी लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, और इसके अलावा अगर आपके 2 चाइल्ड है तो 2 चाइल्ड की ट्यूशन फीस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के मन में आता है, दे कंफ्यूज
tuition fee in the school or college with the tuition fee which they are paying to the outside academies. तो इनकम टैक्स ने ये कहा है कि आप जो ट्यूशन फीस कॉलेज या स्कूल्स की देते हैं या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की देते हैं, वही ट्यूशन फीस आप 80C के अंदर एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, साल के शुरू में मैंने कुछ उसमें ड्यूज होते हैं, बिल्डिंग फंड है या स्पोर्ट्स फंड है या कुछ और एक्टिविटीज के नाम से आपसे स्कूल या कॉलेज पैसे लेता है या आपसे ट्रांसपोर्ट के चार्जेस लेता है, वो आप ट्यूशन फी के अंदर नहीं ले सकते हैं। तो प्योरली एंड प्योरली ट्यूशन फी विच यू पे ऑन अ मंथली बेसिस इज अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इसी तरह 5 ईयर पोस्ट ऑफिस के जो डिपॉजिट्स हैं, जैसे बैंक में अब क्या हो गया है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट ना करूं बिकॉज सम्स आर मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स और सम में आपको रिटर्न्स लग रहा है कि प्रोबेबली ज्यादा हो या कम हो एंड यू हैव अ फ्लेवर फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी बैंक को, नेशनलाइज्ड बैंक में या प्राइवेट बैंक में अप्रोच करके देयर इज अ सेपरेट स्कीम कोड जिसके अंदर आप 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं और बाय ओपनिंग अ 5 ईयर प्लस FDR। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि आप 5 साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो गया और इधर से आपने 80C में भी अपना बेनिफिट पूरा कर लिया। तो इसके अलावा सीनियर सिटीजन स्कीम है जिसके अंदर सीनियर सिटीजन्स अगर इन्वेस्ट करते हैं तो दे कैन आल्सो बी कवर्ड अंडर 80C। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और चीज है सुकन्या समृद्धि स्कीम। अब अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है एंड शी इज बिलो 10 इयर्स ऑफ एज, तो आप उसके नाम पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं एंड विच हैज अ अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उस स्कीम इज वैलिड अप टू द गर्ल मैरिज। जैसी 18 प्लस के बाद गर्ल की मैरिज होती है, द स्कीम इज वैलिड अप टू दैट एंड और 21 इयर्स इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दिस इज ब्रॉडली द सेक्शंस व्हिच आई हैव डिस्कस्ड अंडर 80C। लेकिन मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे केसेस में लोग अपनी 80C की लिमिट को भी पूरा नहीं करते हैं। तो my suggestion is कि if you are first you have to see कि आप 80C की लिमिट को पूरा करिए। और देखा क्या गया है कि अगर मैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालता हूं, तो मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि लोग एट द फैग एंड ऑफ द पीपल एट द फैग एंड ऑफ द ईयर मींस फरवरी में जब उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्रूफ्स अपने एम्प्लॉयर को देने होते हैं, उसी टाइम वो पूरे का पूरा पैसा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में, म्यूचुअल फंड में या कहीं पे और डालते हैं। तो माय सजेशन इज कि अगर आपको पता है कि साल के शुरू में ही आपको 1.5 लाख रुपए 80C में डालना है और आपका पीएफ जो है एम्प्लॉयर से मान लीजिए वो 80,000 रुपए कटता है एंड 70,000 इज द शॉर्टफॉल, तो आप लमसम की बजाय सिप मोड में भी वो पैसे को लगा सकते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या होता है, विच आई हैव सेपरेटली पुट लॉट ऑफ वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल CA+ इन दिस रिगार्ड, कि आप अगर सिस्टमेटिकली पैसा लगाएंगे तो आप मार्केट को टाइम तो नहीं कर पाएंगे लेकिन उसकी एवरेजिंग जरूर कर पाएंगे। तो आपको बेनिफिट हमेशा लॉन्ग टर्म में सिप के थ्रू पैसा लगाने से होगा। तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में भी अगर आप पैसा लगाते हैं तो इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80C। नाउ ब्रॉडली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि फॉर्म को मेरे को ओल्ड रजीम में सिलेक्ट करना है कि न्यू रजीम में करना है। अगर मैं पैसे को ट्रांसफर कर रहा हूं तो क्लबिंग प्रोविजंस को कैसे अवॉइड करना है। Another important aspect, now I have recently discussed about 80C. Another important aspect is कि आपके major children are your major source of saving the taxes. वो कैसे? If your children are 18 plus of years age, so that means they can file their returns separately and और अब वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, they are earning somewhere। और शुरू में क्या होता है कि उनका टैक्सेशन स्लैब्स इतना हायर नहीं होता है, तो उस केस में आप उनको जो भी अमाउंट गिफ्ट करते हैं, मान लीजिए आपने उनको 15 लाख रुपए गिफ्ट कर दिया, तो उस पे कोई भी गिफ्ट टैक्स का प्रोविजन नहीं आता है क्योंकि वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। और वो उस 15 लाख को आप 15 लाख को एफडी में इन्वेस्ट करेंगे, आप ऑलरेडी 30% की ब्रैकेट में है, तो आपको 15 लाख पे एफडी पे जो भी इंटरेस्ट आएगा उस पे 30% टैक्सेशन लग जाएगी।
लेकिन आपके चिल्ड्रन नील टैक्सेशन में है या वो 10% टैक्सेशन में है, आपने उनको 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया, उस पर मान लीजिए 7-8%, 7% के हिसाब से मान लीजिए उस पर 1,05,000 रुपए इंटरेस्ट आया, तो वो उनकी इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर वो स्लैब लोअर स्लैब में है या नील स्लैब में है, तो देर में आपको 20% के करीब टैक्सेशन बच जाता है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि योर मेजर चिल्ड्रन आर आल्सो योर मेजर सोर्स ऑफ सेविंग ऑफ योर टैक्सेस। तो मैं कई बार लोग मेरे से आके डिस्कस करते हैं कि सर हाउ वी शुड नॉट पे टैक्सेस, और वी आई सेड यू पे टैक्सेस बिकॉज आज की डेट में चाहे आपके बैंक अकाउंट्स है, चाहे आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी खरीद रही हैं, एवरीथिंग ऑफ यूअर इज पैन लिंक्ड। दैट मीन्स आपके पास आज की डेट में जितनी इंफॉर्मेशन नहीं है, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है। तो बेटर ये रहता है कि आप टैक्स को अवॉइड मत करिए, बिकॉज टुडे इज नॉट द टाइम टू कि आपने इनकम अर्न कर ली और आपने उस पर टैक्स नहीं दिया। टुडे इज द टाइम व्हेन लिजिटिमेटली आप टैक्स को सेव करिए, लेकिन जो भी आपका टैक्स बनता है उसको ड्यूली पेड करिए। बिकॉज रिसेंटली पहले हम सब लोग क्या करते थे, 26 AS से इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करते थे, जिसमें बहुत ही लिमिटेड सी अप्रोच होती थी कि अगर मेरा कोई टैक्स कटा है तो वो 26 AS में आता था। अब गवर्नमेंट ने पिछले साल से AIS और TIS इंट्रोड्यूस कर दिया है। AIS इज एनुअल इंफॉर्मेशन समरी एंड TIS ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो उस केस में क्या हो गया कि मेरी हर ट्रांजैक्शन की डिटेल, वेदर उस पे TDS कटता है या नहीं कटता है, वो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। मेरे सेविंग अकाउंट्स, मेरा म्यूचुअल फंड्स में सेल और परचेज, मेरी प्रॉपर्टी की सेल और परचेज, मैंने कहीं फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट्स की है या मैंने फॉरेन ट्रैवल किया है, ऑल दोज इंफॉर्मेशंस इज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। सो बेटर टू डिक्लेयर एवरीथिंग व्हाटएवर इज इन ब्लैक एंड व्हाइट। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बहुत सारे लोगों के मन में आता है, और वो कहते हैं कि सर व्हाट इज ब्लैक एंड व्हाट इज व्हाइट। बिकॉज ऐसा जब हम अपने वेदर वी कीप मनी इन आवर वॉलेट और वी कीप इट समवेयर, तो पैसे पे कहीं नहीं लिखा होता है कि ये व्हाइट है या ब्लैक है। तो मैं उनको एक ही क्वेश्चन के आंसर देता हूं कि इफ यू व्हाटएवर इज मनी इन योर पॉकेट और इन योर बैंक अकाउंट, इफ यू आर एबल टू प्रूव कि दिस मनी हैज बीन अर्न फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्सेज और मैंने इस पे पूरा टैक्स जो भी ड्यू बनता था वो पे किया है, दैट इज अ व्हाइट मनी। इफ यू आर नॉट एबल टू प्रूव इन योर अकाउंट कि ये पैसा कहां से आया है, दैट इज अ ब्लैक मनी। सो सिंपली आपको एक एज ए लेमैन एक थंब रूल अपनाना है। अगर वो पैसा आप प्रूव कर पाए उस एंट्री को, मान लीजिए मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आए, इफ आई एम एबल टू प्रूव ये 10 लाख रुपए कहां से आए हैं, इट इज अ व्हाइट मनी, अदरवाइज इट कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्लैक मनी और उस पे गवर्नमेंट मेरे को नोटिस या कुछ भी डाल सकती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डिडक्शन, 80D। अब 80D में अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस पे कोई भी प्रीमियम पे करता हूं, वेदर फॉर माय स्पाउस और माय डिपेंडेंट चिल्ड्रन या अपने ऊपर कोई भी मेडिकल पॉलिसी लेता हूं, तो 25,000 रुपीज तक मैं उसके 80D का बेनिफिट ले सकता हूं। और अगर मेरे पेरेंट्स हैं जिनके ऊपर मैंने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है या उनके मेडिकल पॉलिसीज का प्रीमियम मैं पे कर रहा हूं, तो दैट सेपरेटली आई कैन claim 50,000. That means for my parents who are senior citizens, 50,000 for medical expenditure or medical premium and 25,000 for me, my spouse and my children. So that means 75,000 तक I can claim under section 80D. अब इसमें एक और important चीज है which most of the people missed out and we separately guide our clients on that particular is, अगर मान लीजिए मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम 15,000 रुपए आता है, तो उस केस में 25,000 की लिमिट मेरी एग्जॉस्ट नहीं होती है, तो आई कैन सेपरेटली क्लेम 5,000 रुपीज अंडर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। मींस कि गवर्नमेंट कहती है कि अगर साल में 5,000 रुपए तक
आपने अपने हेल्थ टेस्ट करवाने के लिए या डॉक्टर की विजिट के लिए या मेडिसिन के ऊपर खर्च किए हैं, तो 5,000 रुपए तक आप 80D के अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में चेकअप के अंदर क्लेम कर सकते हैं। और 90% ऑफ द क्लाइंट्स जो फर्स्ट टाइम हमारे पास आते हैं, आई हैव सीन कि दे डू नॉट क्लेम दिस डिडक्शन। तो अगर आपने अभी तक इस डिडक्शन को कभी क्लेम नहीं किया है, तो आई विल सजेस्ट कि आप कम से कम इस 5,000 रुपए का तो बेनिफिट लीजिए। अगर आप 30% की ब्रैकेट में आते हैं तो 1,500 रुपए तो यू आर सेविंग लिजिटिमेटली। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो माइंड में आता है, जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया, कि 80D के अंदर जो सीनियर सिटीजन है वो अगर मेडिकल पॉलिसी नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको मेडिकल पॉलिसी कंपनी देती नहीं है, तो वो 50,000 रुपीज तक अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च करते हैं तो उनको 50,000 का 80D में रिबेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे सीनियर सिटीजन की क्वारी मेरे पास आई कि सर मेडिकल एक्सपेंडिचर हमने कर दिया, लेकिन उस सेक्शन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें 3 कंडीशंस इनकम टैक्स ने इंपोज किए हैं। नंबर 1 कंडीशन कि आपने जो मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, इट हैज टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, कि डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया है, जो भी ट्रीटमेंट है। सेकेंडली, जो भी आप पेमेंट करेंगे, इट हैज टू बी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, मींस कैश से पेमेंट इज नॉट अलाउड। अब बहुत सारे हम लोग क्लाइंट्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इट, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ने 50,000 मांगे थे, हमने 50,000 पेमेंट कर दी और ना कोई रसीद ली ना कुछ लिया, तो आपको इसका 80D का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। सेकेंडली, इट हैज टू बी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। आप IMPS से करिए, आप निफ्ट करिए, आप किसी भी और पेमेंट गेटवे के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करिए, बट कैश से नहीं करना है। Thirdly, you should have proper record of bills for those expenditure. अगर ये 3 कंडीशनें आप मीट करते हैं और सीनियर सिटीजन है या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो 80D में इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट सेक्शन इज, एक और सेक्शन है 80CCD। इसमें क्या है कि 80 पहले मेरे को गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए तक का 80C में बेनिफिट देती थी। अब गवर्नमेंट हैज सेड कि नेशनल पेंशन स्कीम, बिकॉज गवर्नमेंट ने देखा कि हम सबको पेंशन नहीं दे सकते हैं, एंड इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो पेंशन है, गवर्नमेंट स्लोली उसको कटेल कर रही है या बंद ही कर दी है काफी जगह पे। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप एम्प्लॉय हैं और आप 50,000 रुपीज तक NPS के अंदर डालते हैं, तो 1.5 लाख के अलावा आपको 50,000 रुपीज का NPS के अंदर रिबेट मिलेगा। और Similarly, employer can contribute also separately to the NPS fund. तो इस सेक्शन के अंदर आप 80CCD में आप सेपरेटली अपना बेनिफिट फॉर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर किसी भी फंड को आप चूज कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फंड मैनेजर्स, फंड हाउसेस, जैसे ICICI बैंक का है, HDFC का है, कई गवर्नमेंट बैंक्स का है, तो उसके अंदर आप डाल के आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। Another important section is 80E। 80E के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आई हैव चिल्ड्रन, और कई बार ऐसा होता है कि अभी तो देखा क्या गया है कि बहुत सारे लोग कुछ साल जॉब करने के बाद दे टेक अ ब्रेक एंड दे गो फॉर अ हायर स्टडी आइदर अब्रॉड और विद इन इंडिया, और उसके लिए टू अपग्रेड देमसेल्व्स, या उनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या इंडिया के अंदर ही अच्छे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, और एजुकेशन इतनी कॉस्टली हो गई है कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू पे फ्रॉम देयर ओन। तो उस केस में दे अप्रोच अ पर्टिकुलर बैंक टू टेक अ लोन फॉर द एजुकेशनल पर्पस। और इसमें मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि अगर आप 7.5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन किसी भी बैंक से, तो इट इज उसमें बैंक आपसे कोलेटरल डिमांड नहीं कर सकता है, करनी नहीं चाहिए उसको, देयर इज अ गाइडलाइन टू इट। और अगर आप 7.5 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं एजुकेशन लोन, तो उस पे बैंक कैन आस्क फॉर अ कोलेटरल। तो अब आपने जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट लिया है, वेदर फॉर द एजुकेशन ऑफ सेल्फ और स्पाउस और योर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो उसका बेनिफिट आप सेक्शन 80E के अंदर
ले सकते हैं सेपरेटली। तो अगर आपको लगता है कि मैंने अपने चिल्ड्रन पे एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है, तो आई विल सजेस्ट कि व्हाई टू ब्लॉक योर फंड्स, टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक और उसका आप 80E में प्रॉपर इंटरेस्ट का बेनिफिट लीजिए। अगर आप 30% की ब्रैकेट में हैं और आपको 8%, 8.5% पे पैसा मिल रहा है, तो टेक्निकली आपको 2.40 उसमें से सेव हो गया, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 5.60% पे ही आपको पैसा मिल गया, which is a good even than a FD rate of interest. अब एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 80DD. 80DD is medical treatment for your any person who is dependent upon you and who is handicapped. उसके ऊपर 80DD का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर वो 40% तक कोई डिसेबिलिटी है, तो उस केस में 75,000 रुपीज का बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आप की 80% एंड अबव डिसेबिलिटी है, तो आप 1,25,000 का रिबेट अंडर 80DD भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस में हमने देखा है देयर इज सम पर्संस हु हैव सम डिसेबिलिटी, लेकिन लोग उसका बेनिफिट 80DD के अंदर लेना भूल गए हैं। उस केस में आपको सिर्फ वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट चाहिए, वेदर आपने एक्सपेंडिचर को इंकर किया है या नहीं इंकर किया है, दैट डजंट मैटर। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 80DD-B। उस केस में क्या है कि मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिजीजेस। अब उसमें ब्रॉडली देयर आर सर्टेन टेक्निकल डिजीजेस व्हिच, बिकॉज़ आई एम नॉट फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन, तो कुछ टेक्निकल डिजीजेस हैं व्हिच देयर इज अ लिस्ट अवेलेबल विद द इनकम टैक्स, कि उसमें से एक मेजर न्यूरो का डिजीज है या आपका कुछ कैंसर का कुछ पर्टिकुलर टाइप का है। अगर उस टाइप का कोई डिजीज होता है, तो आप 40,000 रुपीज तक का बेनिफिट इनकम इस सेक्शन के अंडर ले सकते हैं। और अगर आपके द पर्सन हु आर फाइलिंग देयर रिटर्न दे आर सीनियर सिटीजन्स और देयर पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन्स, तो दे कैन टेक अ बेनिफिट अप टू 1 लाख ऑफ रुपीज इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो इस although we cannot avoid that disease, अब डिजीज हो गया है, तो आई एम नॉट हियर एंड सजेस्टिंग कि आप उस पे अनड्यू बेनिफिट ले लिए, लेकिन अब डिजीज तो हो गया है, उसके ऊपर खर्चा भी होना है, तो दिस इज द सेक्शन के अंदर आप इनकम टैक्स हैज अलाउड यू टू टेक अ बेनिफिट। अगर इनकम टैक्स ने अलाउ किया है और पर्टिकुलरली कोई डिजीज किसी पर्सन को हो गया है, आई वुड सजेस्ट व्हाई नॉट टू टेक अ बेनिफिट आउट ऑफ इट, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंडिचर तो आपका हो ही रहा है। अब another important section जहां पे प्रोबेबली मैंने पहले भी डिस्कस किया कि एचआरए का। अब हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं। तो रेंटेड अकोमोडेशन में अगर आप रह रहे हैं और देखा क्या गया है कि बहुत सारे क्लाइंट्स में तो ओनर कहता है कि आप मेरे से कैश में पे कर दीजिए रेंट, या एग्रीमेंट की क्या जरूरत है। तो here I will suggest कि if you are a salaried person and you want to claim the benefits under HRA, तो आप एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट बनाइए और अकाउंट पे चेक के थ्रू उसको पेमेंट करिए। लेकिन अब ये तो मैंने डिस्कस किया अबाउट द सैलरीड पर्सन और द पेंशनर्स और हु आर टेकिंग सैलरी एंड हु आर सेपरेटली हैविंग द बेनिफिट ऑफ HRA, जिनको बेसिक HRA DA करके सैलरी में सेपरेटली HRA मिलता है। Now I am coming to the point कि कुछ लोग ऐसे हैं who are self-employed professionals और who are into business, लेकिन वो भी रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, तो उनको तो कोई HRA मिल नहीं रहा है। तो फॉर देम देयर इज अ सेपरेट सेक्शन 80G, जिसमें गवर्नमेंट सेज कि अगर आपको आपकी सैलरी लमसम में मिलती है, मान लीजिए कुछ लोगों को 50,000 रुपए लमसम में, उनके कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं, 50,000 में लमसम सैलरी मिल रही है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो बिजनेस में रिटर्न भरते हैं, लेकिन वो एक रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, तो वहां पे आप 80G के अंदर एक सेपरेट बेनिफिट 5,000 पर मंथ की चीज अलाउड, वो आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसके अंदर टोटल साल का आप 60,000 रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज अ पर्टिकुलर एग्जाम्पशन which I have seen lot of self-employed people or small businessmen or even the people who are working
इन द ऑर्गेनाइजेशन जहां पे लमसम सैलरी मिलती है वो अवॉइड करते हैं। तो ये सेक्शन का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। अब नाउ देयर इज लॉट ऑफ पीपल आफ्टर द कोविड एंड कमिंग इनटू प्लेस, पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस, या उनको लगता है कि सारा पैसा मेरे को खुद से ही सेव करके मैं अपने ऊपर ही कर रहा हूं, तो आई शुड बी बिकम मोर रिलीजियस, या मेरे को कुछ ना कुछ चैरिटी में भी देना चाहिए। तो दिस इज अ थॉट which I have seen lot of people's mind have come it up कि life is too short, और लाइफ में हमें अपने ऊपर के अलावा हमें कुछ चैरिटी में भी करना चाहिए। तो there is a section 80G which is available। आप उसमें क्या कर सकते हैं, अगर कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे 80G की 100% रिडक्शन अवेलेबल है, कुछ में 50% की है, तो दैट लिस्ट इज अवेलेबल विद द इनकम टैक्स, या आप किसी भी प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं एंड इंश्योर कि आप पेमेंट को अकाउंट पे चेक के थ्रू करिए या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू करिए, और उनसे एक प्रॉपर रसीद लीजिए और 80G का चेक भी कर लीजिए कि वेदर दे आर रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल टू गिव such type of receipt under section 80G। और उस केस में 50% है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, कुछ में 100% है। तो वो अगर आप डिडक्शन करते हैं तो आप 80G के अंदर भी, इस सेक्शन के अंदर उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरह एक सेक्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 80GGC, which is a section जहां पे you can donate to political parties, if somebody has a some soft corner for the political parties, और आप वहां पे भी कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, तो 80GGC के अंदर आप सेपरेटली डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज दे सकते हैं, और उसमें पेमेंट हैज टू बी थ्रू काउंट पे चेक, और उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब this is the broadly type of deductions. Apart from this, there are a lot of other deductions which are available, which are applicable to business people. So here I am today not discussing about that. So today I am purely and purely concentrating myself on the individuals and HUFs and this other way, and because I have few points more left it up. So another important aspect is income from agriculture। अब बहुत सारे लोगों का एग्रीकल्चर इनकम होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अब एक नोशन आ गया है कि एग्रीकल्चर इनकम हर तरह की एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। सो प्रोबेबली हियर आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि प्योरली अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, कुछ आप खेती करते हैं या कुछ एग्रीकल्चर इनकम है, तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर मैं डेयरी करता हूं, मैं फार्मिंग करता हूं, या मैं कुछ और पोल्ट्री का काम करता हूं, विच आर एग्री रिलेटेड एक्टिविटीज बट नॉट डायरेक्टली एग्रीकल्चर, उस पे टैक्सेशन प्रॉपर है। तो इसमें ना देखा क्या गया है कि व्हेन फ्यू ऑफ क्लाइंट अप्रोच अस, दे सेड सर मेरी एग्रीकल्चर इनकम है तो मेरे को कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर दिस स्टेटमेंट इज पार्टली करेक्ट। क्या है कि अगर मेरी 5 लाख की इनकम है, उस पे मान लीजिए मैं 5% की स्लैब में आता हूं, लेकिन मेरी एग्रीकल्चर इनकम भी है जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, जो फर्दर 5 लाख की है, तो उस केस में आल्दो मेरे को जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो पहले 5% की स्लैब में थी, लेकिन अब ये एग्रीकल्चर इनकम ऐड करने के बाद वो 10 लाख हो गई है, तो आई विल कम अंडर 20% स्लैब। तो टेक्निकली मेरा टैक्स नहीं लगा एग्रीकल्चर इनकम पे, लेकिन मेरी स्लैब रेट चेंज हो गई है। तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है, या तो आपकी प्योरली एग्रीकल्चर इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपकी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो आपका स्लैब रेट चेंज हो सकता है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। Another important point which I am going to discuss about is HUF। अब बहुत सारे Hindus, Sikhs and Jains, they have been allowed to form a Hindu undivided family। इसके ऊपर सेपरेटली हाउ इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसका प्रोसेस कैसे है, I have separately put a video in my YouTube channel in this regard। लेकिन here I am going to discuss कि अगर आपकी कोई इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है आपके पास और उस पे कोई रेंटल इनकम आती है, बहुत सारे लोगों के केस में देखा गया है कि देयर फादर्स, देयर फोरफादर्स वर विजनरीज, उन्होंने चंडीगढ़ में या और किसी सिटीज में दे हैव टेकन 2-3 प्रॉपर्टीज जिसपे अच्छी रेंटल इनकम आती है।
अब वो रेंटल इनकम जब आप 30% की स्लैब में है और वो रेंटल इनकम भी 30% आप ऐड हो जाती है आपकी स्लैब में, तो उस पर टैक्सेशन 30% ही लग जाता है। तो इन एचयूएफ यू कैन फॉर्म अ एचयूएफ, जैसे कोई पर्सन मैरिड होता है तो ऑटोमेटिकली एचयूएफ इज फॉर्म। हिंदू, जैन और सिख्स, अगर इनमें से कोई भी पर्सन हु गेट्स मैरिड तो ही कैन फॉर्म अ एचयूएफ। आप और उसके बाद उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें दे कैन बी आल्सो एडेड टू द एचयूएफ टिल दे आर अनमैरिड। तो आप एचयूएफ सेपरेटली फॉर्म कर सकते हैं, आप उसका पैन कार्ड सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं, और आप जैसे आपकी स्लैब्स है वैसे ही आप एचयूएफ में स्लैब्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दैट मींस दिस इज अ लेजिटिमेट वे ऑफ रिड्यूसिंग योर टैक्स। तो जितना बेनिफिट आप अपने या अपनी स्पाउस के अकाउंट्स में लेते हैं उतना ही बेनिफिट आप अपने एचयूएफ के अकाउंट में भी ले सकते हैं। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी पहले क्या होता था कि ब्रॉडली एक हाउस पे was treated as a self occupied. Now you can treat up to 2 houses as a self occupied. लेकिन इसमें एक आप उसमें ऑप्शन आपके ऊपर, अगर आपके पास 4 घर है तो कोई भी 2 घर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि 2 आर सेल्फ ऑक्युपाइड। पहले ये लिमिट 1 थी। अब बाकी जो 2 हाउसेज है उस पे आपको डीम्ड लेट आउट का कंसेप्ट आता है, लेकिन मैंने अपने कैरियर में देखा कि 99% ऑफ लोग उस डीम्ड लेट आउट का कंसेप्ट को दिखाते नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपके पास कोई तीसरा घर है, चाहे उस पे आपको रेंट आता है, अगर तो आता है तो आप प्रॉपर उसका रेंट दिखाइए और उसमें 30% बेनिफिट क्लेम करके बाकी अपनी रेंटल इनकम में शो करिए। लेकिन अगर आपको उसमें टैक्स नहीं आता है तो आप उसको डीम्ड लेट आउट दिखाइए। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई होम लोन ले रहे हैं तो आप, if you and your spouse both are taking working and दोनों की टैक्सेबल इनकम है और दोनों होम लोन ले रहे हैं, तो दोनों अप टू 2-2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का बेनिफिट अपनी रिटर्न में अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट क्लेम कर सकते हैं। दैट मींस अगर आपने कोई होम लोन लिया है, अगर आपने इंडिविजुअली लिया है तो आप मैक्सिमम 2 लाख तक ले सकते हैं, लेकिन आप और आपकी वाइफ उसमें को ओनर है। लेकिन इसमें एक चीज खास ध्यान रखनी है कि अगर आप और आपकी वाइफ उस होम लोन में को ओनर है और दोनों बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि आधा ईएमआई आपके अकाउंट से जाए और आधी ईएमआई आपकी वाइफ के अकाउंट से जाए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर पूरी की पूरी होम लोन तो आपने ले लिया या प्रॉपर्टी आपने परचेज कर ली है और पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, देन if a case comes to scrutiny, income tax will not consider it up and they will consider the whole property as your property. तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। और एक और important point which wanted to discuss about is in the taxation part itself and देखा गया है सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी की सेल करते हैं और एक माइंड में मतलब आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कि सर इसको अवॉइड कर देते हैं दिखाना। तो मैं सबको बोलता हूँ कि सर 30 लाख के ऊपर से कोई भी रजिस्ट्री होती है वो तो इनकम टैक्स के पास इंफॉर्मेशन जाती ही जाती है, चाहे आप बताएं चाहे नहीं बताएं। और 50 लाख से ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उसमें टैक्सेशन टीडीएस का आल्सो इम्प्लीकेशन है। तो इसमें देखा क्या गया है कि अगर आपने हाउस सेल किया है तो आप विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 इयर्स आफ्टर द सेल आप न्यू हाउस के अंदर इन्वेस्ट करके उस जो भी आपका कैपिटल गेन बनता था उसको आप लेजिटिमेटली सेव कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरे को बना बनाया घर पसंद नहीं है और आप घर को बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं प्लॉट लेके, तो आप विद इन 3 इयर्स उसको इन्वेस्ट करके कैपिटल गेन को अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें अगर आपने प्रॉपर्टी को 2 साल से ऊपर रखा है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद 2 साल के अंदर अंदर बेच दिया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो और उसमें इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलेगा। तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि, और अब बहुत सारे लोग जो कहते हैं हम प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते, तो उनके लिए दे कैन इन्वेस्ट इन कैपिटल गेन बॉन्ड्स। अब कैपिटल गेन बॉन्ड्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वो आरईसी के भी बॉन्ड है, वो एनएचएआई के भी बॉन्ड्स है,
आप 50 लाख रुपए तक पर पर्सन आप कैपिटल गेन बॉन्ड में अगर पैसा डालते हैं, मान लीजिए मेरे को कैपिटल गेन मैंने 1.5 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी और 1.5 करोड़ की बेची, तो मेरा 1 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ। अब या तो मैं 1 करोड़ को नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूं, या मैं 1 करोड़ में से 50 लाख रुपए कैपिटल गेन बॉन्ड के अंदर डाल। तो कैपिटल गेन बॉन्ड में 5.75% का इंटरेस्ट है और 5 ईयर का लॉक इन। अब बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं कि सर 5 साल तो बहुत बड़ा टाइम है और 5.75 से ज्यादा तो मेरे को 6.5-7 तो एफडी में मिल रहा है। तो मैं उनको कहता हूं कि सर जो 20% आपने टैक्स सेव किया 50 लाख के ऊपर, वो भी तो 10 लाख रुपया है, उसको भी तो उस इंटरेस्ट में ऐड करो आप। तो टेक्निकली आपको 8 से 9% इंटरेस्ट बन जाता है, क्योंकि जो आपने 3-4% टैक्स में सेव किया और 5.75% वहां पे अर्न किया। तो दिस इज अ legitimate वे ऑफ saving the taxes if you are avoiding to buy a new property. So this broadly I have tried to discuss about the different sections of the Income Tax Act. The briefly I have touched upon, because if we go on discussing each and each topic, we can go at length for 1 hour in detail on each and every topic. But I have briefly tried to discuss about broadly these are the ways where we can save tax. और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, you can always reach to me. I'm based out of Chandigarh, so you can always reach to me over phone or anything. And this was Vikas from my side. And if some query is there, question is there. So I was just checking it out because we had gone live on the YouTube. There was only one query on the how to save from the agriculture part that you have already saved. You have cleared the doubt that the income will be clubbed, etc. Because largely that notion is there. And bird eye view तो आपने हर चीज का दे दिया है, और बाकी आपके सेशंस पे या बाकी भी यूट्यूब पे देखते रहेंगे, लोगों ले लेंगे और आपके साथ बार बार आते रहेंगे, लोगों को ज्ञान देते रहेंगे. So thank you friends and enjoy your weekend, and thank you Mr. Rajiv for sharing your knowledge. Thank you. ये आशा करते हैं कि लोग इससे इनकम टैक्स बेटर तरीके से सेव करेंगे, और वो कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9. That is the key mantra for today's session. Thank you.